یک روح، بس ایک ہستی سے تعلق ہو، وہ ہے اللہ۔ پھر سن لیں، اور اپنے میں جتنی بھی سوشل میڈیا کی ہماری ٹیم اور میگزین کی ٹیم ہے ان سے عرض کروں گا، مجھے ہر سال اوتاد کے تعویذ کو شب برات کے ساتھ، شب معراج کے ساتھ کی ترتیب دیں گے جو میں آج بتا رہا ہوں۔ میری میگزین کی ٹیم بھی اور میری سوشل میڈیا کی ٹیم بھی یہ توجہ سے اس کو بات کو سن لے، اور اس کا 3 مہینے پہلے، 4 مہینے پہلے، 5 مہینے پہلے لوگوں کو اعلان ہو کہ یہ رجب کا تعویذ، جس کو اوتاد، نقش اوتاد تعویذ کہتے ہیں، رجب کا تعویذ، اور رجب میں شب معراج کو اکٹھا کیا ہے میں نے۔ کوئی مجھ سے پوچھے، بہت عمل ہیں اولیاء کے، بہت عمل ہیں اللہ کے نیک بندوں کے، لیکن مجھے جو عمل ملا ہے، مجھے جو عمل ملا ہے، اور یہ عمل سینہ تو سینہ ملا ہے، مجھے جو عمل ملا ہے وہ میں عمل آج آپ کو دے رہا ہوں، اور وہ پورے رجب میں ہے، پورے رجب میں۔ اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں شب معراج کا کوئی عمل دیں، شب معراج کا، تو میں یہ عمل دے رہا ہوں۔ پھر غور سے سنیں، تیسری دفعہ دوہرا رہا ہوں اور آخری دفعہ۔ 2 نفل حاجت کے، ہماری سوشل میڈیا اور میگزین کی ٹیم میری باتوں کو نوٹ کر رہی ہے، 2 نفل حاجت کے یکسوئی کے ساتھ، مغرب سے فجر سے پہلے تک، مغرب سے فجر سے پہلے تک پڑھ کے سلام کے بعد اول آخر درود پاک 3 بار، اور پھر ایک وظیفہ پڑھنا ہے وجدان کے ساتھ، اور اپنی خواہشیں، اپنی ضرورتیں، اپنی مرادیں، اور یہ 2 نفل حاجت کے ہدیہ دینا ہے ان 4 اوتاد کو۔ یہ ذہن نشین رکھیے گا، لازم ان 4 اوتاد کو ہدیہ کرنا ہے، جن کا تعویذات پہ نقش پہ لکھا ہوا ہے، الہی بحرمت عبد الجلیل، الہی بحرمت عبد الکریم، الہی بحرمت عبد الرشید، الہی بحرمت عبد الرحیم۔ یہ 4 اوتاد ہیں، ان کو یہ 2 نفل ہدیہ کریں۔ ہدیہ کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ ہستیاں آپ کے لیے دعاؤں میں لگیں گی، آپ اللہ سے وجدان کے ساتھ ایک وظیفہ پڑھیں گے، اور یہ وظیفہ انہی اوتاد کا وظیفہ ہے۔ اور میرا گمان ہے، بھول نہیں تو میں یہ زندگی میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں، چھپایا نہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اس دن پچھلے دفعہ میں نے ایک بندے کو دعائیں دی تھیں، یہ مجھے اس نے یاد کروایا، جی رجب کے مہینے میں یہ چیز ہے، میں کو اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے تو لاکھوں کا فائدہ کر دیا، لاکھوں کا۔ یہی میں اپنی میگزین اور سوشل میڈیا کی ٹیم کو کہتا ہوں، مجھے اس طرح یاد دہانی کرا دیا کریں۔ چوتھی دفعہ پھر سن لیں، 2 نفل حاجت، اس کا ثواب ان 4 اوتاد کی روحوں کو ہدیہ کریں، ٹھیک؟ اس کے بعد اول آخر درود شریف پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھ کے انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو، یہ وظیفہ اوتاد کا وظیفہ ہے، اور اوتاد اس وظیفے کو روزانہ لاکھوں پڑھتے ہیں، اور اللہ پاک ان کے ذریعے سے کائنات کا نظام چلاتے ہیں۔ اللہ نے دنیا کو اسباب بنایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فرشتوں، ایک پانی پہ معمور فرشتہ ہے، تو اللہ فرشتوں کا محتاج ہے؟ نہیں، اللہ نے اپنا نظام بنایا ہے۔ یہ فرشتہ ہواؤں پہ معمور ہے، یہ فرشتہ بارشیں برساتا ہے، یہ فرشتہ ریبائل، یہ دلوں میں ٹھنڈک راحت پہنچاتا ہے۔ کیا میرا رب ان کا محتاج ہے؟ پھر یہ وظیفہ جو میں دے رہا ہوں، یہ وظیفہ جو میں دے رہا ہوں، ہماری ٹیم اس پورے نفل اور پوری ترکیب کو جو میں نفل دے رہا ہوں، اس کو
पोस्ट बनाएगी, मुझे दिखाएगी, ये काम लिखते जाएं, मैं लिखा हुआ अचानक देखूंगा अपनी टीम से। फिर ये वजीफा बैठ के अव्वल आखिर 3 दफा दरूद शरीफ, मैं बहुत बार बार समझा के ये नफिल अर्ज कर रहा हूं। बैठ के पहले सुन ले, अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्ला हू, अल्लाहु ला इलाहा हू, वल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा हू। अल्लाह के 2 नाम हैं, एक हादी एक हक। अंतल हादी हूं लैसल हादी इल्ला, अल्लाह के 2 नाम हैं, एक हादी और एक हक। ये फिर विजदान से पढ़ें, अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्ला हू। ये विजदान से पढ़ें, बहुत विजदान से पढ़ें, डूब के पढ़ें। तस्बीह ले लें या ना लें, पर दिल सारा का सारा अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, घंटा, जितना हो रो रो के पढ़ें, गिड़गिड़ा के पढ़ें, भिखारी बन के पढ़ें, मोहताज बन के पढ़ें, साइल बन के पढ़ें, मंगता बन के पढ़ें। ये जब वजीफा करेंगे, उन नेक अरवाह जितने भी हैं और वो औताद, ये वजीफा उन्हीं का है, ये वजीफा उन्हीं का है, उनको राहत मिलेगी। और इस वजीफे में सारी तौहीद 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 है, इस वजीफे में सारी ताकत है। अब वजीफे पे गौर कीजिएगा, अंतल हादी अंतल हक, मौला तू ही मुझे खैर की राहें दिखाने वाला है, तू ही मुझे अंधेरे से निकालने वाला है। कर्ज का अंधेरा, मर्ज का अंधेरा, कुफ्र का अंधेरा, फक्र का अंधेरा, बीमारियों का अंधेरा, गुनाहों का अंधेरा, ऐ अल्लाह मेरी मुसीबतें परेशानियां सब अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है। अंतल हादी अंतल हक, और तुझसे बड़ा कायनात में हक कोई नहीं है। लैसल हादी इल्ला हू, तेरे अलावा कायनात में कोई राह नहीं, कोई रास्ता नहीं, बस तू ही तू है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। बड़ा ताकतवर वजीफा है, बहुत ताकतवर वजीफा है। मेरे साथ पढ़ें जज्बों की कैफियतों के साथ, मेरे साथ पढ़ें वलवलों के साथ, मेरे साथ पढ़ें दिल के दिहान के साथ, मेरे साथ पढ़ें अंदर के गुमान के साथ, मेरे साथ पढ़ें अब सच्ची जुबान के साथ, मेरे पास साथ पढ़ें पूरे जोश के साथ, मेरे साथ पढ़ें पूरे जलाल के साथ, मेरे साथ पढ़ें बावाज़ बुलंद, अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्ला हू, अंतल हादी अंतल हक हादी इल्ला हू, अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्ला हू, अंतल हादी अंतल हक अंतल हादी अंतल हक अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्ला हू, लैसल हादी इल्ला हू, लैसल हादी इल्ला हू, लैसल हादी इल्ला हू, अंतल हादी अंतल हक फूट उठती हैं और दिल की तारों से अल्लाह का नाम ऐसे विजदान के साथ अब कैफियत बदल जाती है, पल में बदल जाती है। ये वो ताकतवर वजीफा है। मौला तू मुझे अंधेरे से निकालेगा, कर्ज अंधेरा, मर्ज अंधेरा, कुफ्र अंधेरा, गुमराही अंधेरा, गुनाह अंधेरा, खता अंधेरा, इल्लत अंधेरा, किल्लत अंधेरा, जिल्लत अंधेरा, मेरी नाकामियां, मेरे रास्ते बंद, मेरी गलियां बंद, बेऔलादी, परेशानी, मेरी झोलियां नहीं भरी, मुझे सच्चा साथी चाहिए, मेरी बेटियों का बख्त चाहिए, मेरे बेटों का नसीब चाहिए, मुकद्दर चाहिए। अगर नहीं मिला, ये अंधेरा है, ऐ मेरा अल्लाह
تو हादी है, अंधेरों से तू निकालेगा, और तू हक है, हक है, हक है। हमारे बड़ों की किताबों में एक बात लिखी है, मेरे बड़ों ने जो अपनी डायरियां लिखी हैं, 40 से ज्यादा, बहुत ज्यादा हैं। किसी ने मेरे बड़ों से पूछा आपकी आल क्या है? कहा हम आले हक हैं। तो पूछा क्यों? कहा हमारे मूरे से आला जो थे, बड़े दादा के दादा के दादा के दादा, उनका नाम अब्दुल हक था। आले हक, जैसे आले सऊद कहते हैं, वो तो खैर बड़े हैं। आले हक, अंतल हादी अंतल हक। और फिर नफी कर रहा, लैसल हादी, मौला दुनिया सारी मेरी मदद में आ जाए, अगर तू नहीं चाहेगा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लैसल हादी इल्लल हक, फिर भी तू ही तू है। ये नफिल अगर कोई पढ़ ले और इस वजीफे को विजदान विजदान, कैफियत, दर्द, गम और पूरे जज्बे के साथ अगर कोई शख्स इसको पढ़े और अपनी मुश्किलें, अपनी परेशानियां, अपनी नाकामियां, अपनी उलझने, अपनी हाजात, अपनी बलियात, अपने तूफान अल्लाह के सामने रख दे, मेरा मौला मैं तेरे सामने बैठा हूं, और सच पूछे ये चारों तरफ दुर्वेश आके बैठ जाते हैं, मैंने आंखों से देखा है। चारों तरफ ये दुर्वेश आके बैठ जाते हैं, चारों तरफ आके बैठ जाते हैं और अल्लाह से हाथ उठा के दुआ करते हैं कि अल्लाह तेरा एक कमजोर आदमी, तेरा एक कमजोर बंदा, तेरी कमजोर मर्द औरत कोई भी अल्लाह ये मांग रहा है, तो इसकी जरूरतें पूरी कर दे, इसकी चाहतें पूरी कर दे, इसके दर्द, इसके गम, इसकी बेऔलादी, इसकी जिंदगी की परेशानी, इसकी नाकामी, इसके हालात की सख्ती, अल्लाह तो करम कर दे, अल्लाह तो करम कर दे। सच पूछें, सच पूछें तो करम कर दे। हाँ हाँ, इस साथ आके बैठ जाते हैं। क्या बताऊं आपको, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अनदेखी होती हैं। बात वही एतबार और यकीन की है। बाज़ औक़ात मैं घर जाता हूं तो मेरी बेगम पूछती, आज मज़ामीन नहीं खुल रहे थे, बाद में खुले। मैंने कहा हजरत बाद में तशरीफ लाए थे, साथ आके बैठ गए थे। कौन कहेगा? तो बज़ाहिर तो दुकानदारी है। अब पता नहीं, मैं भी अपने ईमानदार होने का दावा तो नहीं कर सकता। मौत से पहले मैं 1 नंबर हूं या 2 नंबर हूं। मौत से पहले तारिक ईमानदार है या दुकानदार है, मैं तो दावा नहीं कर सकता। मौत बताएगी मेरी ईमानदारी या दुकानदारी को। अल्लाह करे मैं ईमानदार शुमार हो जाऊं, आमीन तो कह दें इंशाअल्लाह। कफा बिल्लाहि वलिया कफा बिल्लाहि नसीरा। एक कागज और था, नहीं दिया तुमने, क्यों नहीं? रजब के महीने में, रजब के महीने में अल्लाह का निजाम कैसा चलता है। मैं आऊं आपको, मैं किताबों के सबूत के साथ कुछ तहरीरें पढ़ के सुनाता हूं। गौर से समझेंगे फिर समझ आएगी, गौर से नहीं समझेंगे समझ नहीं आएगी। हकीमुल उम्मत ने फरमाया औताद 4 होते हैं। किताब का हवाला है शरीयत और तरीकत, सफ़ा नंबर 338, इदारा इस्लामियात अनारकली ने छापी है। औताद 4 होते हैं जो आलम के 4 रुकन होते हैं, मशरिक, मगरिब, शिमाल, जनूब। औताद 4 होते हैं। और औलिया की 2 किस्में, एक जिनके मुतालिक खिदमत, इरशाद, हिदायत, इस्लाह कल्ब, तरबियत, तालीम, ये अहले इरशाद कहलाते हैं। ये हजरात अंबिया के हकीकी नायब होते हैं।
याद रखिएगा, नबूवत का दरवाजा बंद है, नबी नहीं आएगा, वली आएंगे और क़यामत तक आएंगे। विलायत का दरवाजा बंद नहीं है, नबूवत का दरवाजा बंद है। वो जिनके मुतालिक खिदमत है, दीनी और दुनियावी बलियात, अपनी हिम्मत बातनी से, अल्लाह के अमर से उन उमूर की दुरुस्तगी करते हैं, वो अहले तकवीन कहलाते हैं, और उर्फ आम में उनको अहले खिदमत कहते हैं। 70 शिफा। और उनमें जो आला और अकवा है वो हाकिम होते हैं, और कुतुब तकवीन कहते हैं। कुतुब तकवीन, ये किताब, एक और किताब का हवाला। दुनिया में 4 औताद होते हैं, ये आलम के चारों कोनों में मुतय्यन होते हैं। ये औताद मेखों का काम करते हैं, पहाड़ों की तरह जमीन पर अमन बरकरार रखने का काम करते हैं, रखते हैं। और इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी फतूहात मक्की में फरमाते हैं, मैंने हजरत खिज़र से मुलाकात की, इमाम शाफी के मकाम विलायत के मुतालिक पूछा। मैं मिस्र में इमाम शाफी के मज़ार में गया हूँ, काहिरा में। पूछा, फरमाया वो 4 औतादों में से एक औताद है। इमाम शाफी 4 औतादों में से एक औताद हैं। हजरत खिज़र ने मजीद फरमाया कि हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल मकाम सिद्दीक पर फाइज हैं। मैं इमाम अहमद बिन हम्बल की भी बारगाह में बगदाद में गया हूं। ये फुसूसुल हकम, ये इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह की किताब का हवाला है। और सुनिए, फरमाया कि औताद, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। गुनियत तालिबीन, पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब का हवाला दे रहा हूँ। मुख्तसर अंबिया कराम की मुबारक हस्तियाँ अल्लाह ताला माज़ अपने फजल व करम से ही रिसालत और नबूवत से नवाजते हैं। इस तरह विलायत भी अल्लाह के ख़ास फजल व करम से है। अल्लाह ऐसे बंदों को मुंतखब फरमाते हैं जो निज़ाम आलम को अल्लाह के अमर से चलाते हैं। अगली किताब फयूजुल हरमैन शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह की, फरमाते मैंने हुजूर से उनके रोज़ा अथर से पूछा, और मैंने देखा कि वो एक हैरत अंगेज लिबास, मैंने इस मजलिस में आपसे अपनी इजमाली मदद से सरफराज फरमाया। इजमाली मदद इबारत थी मकाम मुजद्दिदियत और कुतुबियत। आपने मुझे इन मनासिब से नवाजा, मुझे फरमाते हैं मुझे आखिरी मनसब से नवाजा। अब मेरी उम्मत में हजूर ने फरमाया अब्दाल होंगे, उनकी वजह से बारिश की जाएगी और उनकी वजह से मदद दी जाएगी। अल्लाह की मदद उनकी वजह से होगी। अबू नईम ने रावी हैं, फरमाते हैं मेरी उम्मत में हर जमाने में 500 खैयार होंगे, खैर के फैलाने वाले वली खैयार, और 40 अब्दाल होंगे, और उन दोनों में कमी न होगी। जो फौत होगा उसका बदल और आ जाएगा। मैंने आपको बताया था मैं फलस्तीन की पहाड़ियों में था, तो वहां मुझे सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकाम नहीं मिल रहा था। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, आइनूनी या इबादल्लाह, या इबादल्लाह आइनूनी, आइनूनी या इबाद। अचानक एक गधा सवार पहाड़, खुश्क पहाड़ दूर तक आए। मैंने उनके गधे पे भी सवारी की, इसकी पोस्ट भी है गालिबन। कहां से आए? फलस्तीन की उन वादियों में फिर रहा था, और मेरे साथ जो गाइड था वो कहते आज तक जिंदगी में कोई बंदा ऐसा नहीं आया कि जो इतना उसने मुझे फिराया हो, एक एक कोने तक ले गया। अब्दाल फरमाया शाम में होते हैं, इनके सबब बारिश होती है, इनकी वजह से दुश्मनों पर फतह होती है। गौर से सुने। और इनकी वजह से अहले जमीन से तकलीफें और मुसीबतें दूर होती हैं। हाँ, और फरमाया
ابو نعیم کی ہر نماز میں میری امت کے سابقین ہوں گے، ہر زمانے کے لیے سابقین ہوں گے. یہ